Brothers and sisters, good morning. भाइयों बहनों आप सबों को गुड मॉर्निंग। Brothers and sisters, the verse was about our Lord being our strength, and what the children displayed over there is how brothers and sisters encourage one another, to keep on going forward. So I was really encouraged by what the children were sharing. और भाइयों बहनों जो वचन था वह सामर्थ और बल के ऊपर था, लेकिन जो हमने बच्चों के बीच में वह जो तालमेल देखा कि कैसे एक संगति होना चाहिए, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया। I also thank the Lord that when brothers and sisters were praying, it really encouraged me. I'm very thankful to the Lord for that. और मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ इस बात को देख करके कि जब भाई और बहन लोग प्रार्थना कर रहे थे, और मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ इस बात के लिए। Let us go to the Word and open Luke chapter 10. और हम एक वचन निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 10:21. और उसका 21वां वचन। Here we see that Jesus is rejoicing greatly in the Holy Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद मना रहा है। Yeah, and the reason Jesus is rejoicing is और यीशु मसीह के आनंद मनाने का कारण यह है because he says that the Father in heaven has hidden certain things from the wise. और उसका कारण यह है कि जो पिता अर्थात जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने बहुत सारी बातों को बुद्धिजीवियों से छुपा करके रखा है, But has only told it to infants. परंतु उसे केवल बालकों पर प्रकट किया है। And that is why Jesus is so happy in the Holy Spirit. He's so joyful in the Holy Spirit. और इसीलिए तो जो मसीह यीशु है वह पवित्र आत्मा में बहुत ही आनंद से भरा हुआ है। Yeah, this chapter, Luke 10, the first 29 verses was about the disciples going out, 70 disciples going out. और यदि हम इस 10वें अध्याय के पहले 20 वचनों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कैसे 70 चेले थे जिन्हें यीशु ने बाहर भेजा था। And they returned back in verse 17. और 17 वचन में हम पढ़ते हैं कि वे सब लौट आए। And they were very happy that they drove out demons in Jesus' name. और वे सब के सब बहुत प्रसन्न थे, खुश थे कि उन्होंने यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। Yeah, in verse 17. But verse 20, Jesus says, "Do not rejoice in this. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven." और यीशु मसीह लूका 10 के 20 में कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। Yeah, very rarely we see in scripture it says, "Do not rejoice." और ये बहुत ही दुर्लभ ऐसी स्थिति है जहां पर हम यह पाते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ कि तुम आनंद ना मनाओ। Yeah, and it's after this that Jesus says that such things are hidden from the wise and the intelligent, but the infants know this. और इसी के बाद यीशु मसीह कहता है कि ऐसी सारी बातें बुद्धिजीवियों से छुपा करके रखे गई हैं और इन बातों को बालकों के ऊपर प्रकट किया गया है। So our Lord was telling the disciples, don't rejoice because you drove out demons. Don't rejoice in that. और प्रभु जो था वह अपने चेलों से कह रहा था कि इस बात में तुम आनंदित ना हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, But rejoice that your names are recorded in heaven. परंतु तुम इस बात में आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। Yes, brothers and sisters, our Lord in His Word, that is what He constantly reminds us, that don't rejoice in what you are doing for the Lord, but rejoice in what I am doing and have done for you. और यीशु मसीह यह कहना चाह रहा है अपने वचनों के माध्यम से कि तुम इस बात पे आनंद ना मनाओ कि तुमने क्या किया है, परंतु तुम इस बात पे आनंद मनाओ कि वह कार्य जिसे मैंने किया है। And these are the things that are hidden from the wise, which means all of us who rejoice in all that we do, we have really not understood God. और Which means that all of us who think that all of us who rejoice in the things that we do, we have really not understood what God has done for us. और हम में से वे सारे लोग जो उन बातों में आनंद मनाते हैं जिसे हमने किया है, तो हम वास्तविकता में परमेश्वर ने क्या किया है उसे नहीं जान पाते हैं। Yeah, we sometimes are not able to truly rejoice in the Lord, in God's doing, His salvation, His love for us.
And many times it is fear and anxiety that constantly grips us. और कई बार हम उन बातों में बिल्कुल भी आनंद नहीं मना पाते हैं जिन कार्यों को परमेश्वर ने हमारे लिए किया, और हम पाते हैं कि निरंतर एक भय हमें आकर के जकड़ लेता है. Yeah, something that a woman of God, Corrie ten Boom, we have done her missionary study once. She had mentioned this once. She was a missionary. She said, trying to do the Lord's work in your strength is the most confusing, exhausting and tedious of all work. But when you are filled with the Holy Spirit, then the ministry of Jesus just flows out from you. और प्रभु की एक दासी जो मिशनरी थी, कोरी टेन बूम, उसने इस रीति से कहा कि तुम परमेश्वर के कार्य को अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से जब करने का प्रयास करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला और उबाऊ रहता है. Yeah, we are not able to rejoice, brothers and sisters, because most of the times we are filled with fear and anxiety. और हम इसलिए बहुत समय आनंद नहीं मना पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक भय और चिंता समाई रहती है. When we read Matthew chapter 6, और हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में पढ़ते हैं. now God's word gives an encouragement in 6:33 that seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. This is a chapter about fasting, about true treasure, about wealth and anxiety. और मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 वचन में कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी. और एक ऐसा अध्याय है जिसमें स्वर्गीय धन, उपवास और इन सब चीजों के विषय में भी लिखा गया है. But when you read the beginning of this, brothers and sisters, read verse 24 and 25. और लेकिन जब हम इसके शुरुआती वचनों को पढ़ते हैं, अर्थात 24 और 25 वचन को, That why did the Lord say that seek first His kingdom, and why did He write so much about worrying? और क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, और क्यों परमेश्वर ने इतना ज्यादा चिंता के विषय में कहा है यहाँ पर? Yeah, because He says very clearly, you cannot serve two masters. You will either hate the one and love the other. और उसने बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम एक से तो प्रेम करोगे और दूसरे से बैर रखोगे. And you cannot serve God and wealth. और तुम परमेश्वर और धन दोनों की उपासना नहीं कर सकते हो. And then verse 25 begins, it says, for this reason I say to you, and then he talks all about worry until verse 34. और 25 वचन से जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि वह केवल चिंता और चिंता के विषय में बात करता है, और यह पूरे 34 वचन तक कहता है. So what is the reason that Jesus says do not worry? और कारण क्या है कि यीशु कह रहा है कि तुम चिंता ना करो? Because many a times we have multiple masters in our life. और क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे जीवन में एक से ज्यादा स्वामी होते हैं. Yeah, here it is about wealth. In this chapter it is about wealth. और यह जो अध्याय है इसमें धन के विषय में कहा गया है. But brothers and sisters, there are so many other things that control us. भाइयों और बहनों, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नियंत्रित करती हैं. Yeah, it is sometimes like a young man who loves a woman, but he will not go after her, but he still loves the woman. और ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे एक जवान पुरुष जो एक स्त्री से प्रेम करता है, वो उसके पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन उसका हृदय हमेशा उससे लगा रहता है. Yeah, but just because he doesn't go after the woman, he thinks that he doesn't love the woman. God in His word says, hate money, hate the second master. और सिर्फ इसलिए कि वह उसके पीछे नहीं जा रहा है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह उससे प्रेम नहीं करता है. और वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरा स्वामी अर्थात धन है, उससे तुम बैर रखो. Yeah, this is one of the reasons why, brothers and sisters, that fear and anxiety constantly grips us, and we are not able to seek God's kingdom wholeheartedly. We are not able to see the Lord. और यही एक और कारण है कि क्यों हमें भय और चिंता लगातार जकड़ लेते हैं, और यही एक और वजह है जिसके कारण हम परमेश्वर के राज्य को स्पष्टता से नहीं देख पाते हैं. And isn't it very sad that most of us are down and depressed? We are not able to see God's goodness because we have various masters in our life. और क्या यह दुखद बात नहीं है कि हम में से बहुत सारे लोग निराशित हैं, दुखित हैं, और इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में अनेक स्वामी हैं. Yeah, and most of us are not able to rest. और हम में से बहुत सारे लोग विश्राम नहीं कर पाते हैं. Yeah, when I was a little child, brothers and sisters, not even a child, until I was in my teens, I used to hold my parents' hands and sleep. Until I was probably 13 or 14 years old, I used to hold my parents' hands. I needed daddy or mummy's hands while I used to go to bed.
I used to hold their hands. और भाइयों बहनों, जब मैं किशोरावस्था तक की आयु में था, तब तक मैं अपने माता या पिता किसी के भी हाथ को पकड़ करके ही सोया करता था। Yeah, and when I look at it, I feel it is so silly and funny. But why I used to do that? Because I used to feel so insecure while I'm going to sleep. I used to think they would go away from me. और आज जब मैं इस घटना को पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझे बहुत ही ये हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु मैं ऐसा उस समय इसलिए करता था क्योंकि एक किशोर होने के नाते मैं एक असुरक्षा की भावना में निरंतर जीता था कि कहीं ये मुझसे दूर ना चले जाएं। Yeah, but the funny thing now is even my son Ian, he holds my hand when he sleeps. He says, I want to hold your hand while I sleep. और जो मजे की बात यह है कि अब मेरा बेटा इयन भी वैसे ही मेरे हाथ को पकड़ करके सोता है। Yeah, it is because we all want that security that my father is with me, my mother is with me, that I am restful, I am peaceful. We all want that, but somewhere we don't find it. और यह कारण यह है कि हम में से हर एक को एक सुरक्षा की भावना चाहिए, एक पिता का आलिंगन चाहिए। Yeah, we don't rest when the Lord says, I will provide for you. और हम तब विश्राम नहीं करते हैं जब परमेश्वर ने हमसे पहले ही कह दिया कि मैं तेरी हर एक चीजों को मुहैया करूंगा। Yeah, the first time the Lord said, I will provide was in Genesis. और सबसे पहली बार जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे मुहैया करूंगा या तुझे प्रदान करूंगा वस्तुओं को, वो उत्पत्ति में पाया जाता है। When Isaac asked, Father, behold the fire and the wood, but where is the lamb? In verse 7, chapter 22, verse 7. और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 7वें वचन में इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से पूछा, हे मेरे पिता, उसने कहा हे मेरे पुत्र, और उसने कहा कि आग और लकड़ी तो है परंतु होम बलि कहाँ है? Yeah, but Abraham says, God will provide. परंतु अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। Yeah, brothers and sisters, it is not only the Old Testament. और भाइयों बहनों, ये केवल पुराने नियम में ही है, ऐसा नहीं है। Our Lord in the New Testament, there are 7 times which I was looking through, He says, I will, I will. और मैं देख रहा था कि नए नियम में भी हमारा परमेश्वर जो है वो 7 बार कहता है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। And unless we rest in the promises of Christ, we will never be able to rejoice wholeheartedly. और जब तक कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्राम नहीं करेंगे, हम कभी भी उसकी प्रतिज्ञाओं का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। Yeah, the first time the I will, it indicates salvation in John chapter 6 verse 37. और पहली बार जब परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय और 37वें वचन में। All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will certainly not cast out. That is God's promise. और जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। Yeah, I've always wondered, Lord, what is the attitude with which I come to you, Lord? और मैंने हमेशा इस बात के विषय में विचार किया कि वह कैसा आचरण था जिसे लेकर के कि मैं परमेश्वर के पास आया था। Yeah, John in his gospel always calls himself as a disciple whom Jesus loved. और यूहन्ना जो है वो इस सुसमाचार में अपना संबोधन इस रीति से करता है, एक ऐसा चेला जिससे यीशु प्रेम करता है। Yeah, whenever I used to listen to that, I used to think, why does John think so highly about himself? और जब मैं इसे पढ़ा करता था तो मैं सोचता था यूहन्ना अपने विषय में इतना बढ़ चढ़ के क्यों सोचता That है? you are so special that Jesus loved you. और क्या तो इतना विशेष था कि यीशु तुझसे प्रेम करता था? But a man of God once explained it and said that John was probably thinking that how can Jesus love a person like me? और एक और प्रभु के दास ने कुछ इस रीति से समझाया कि शायद से यूहन्ना ऐसा सोच रहा था कि कैसे परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति से प्रेम कर सकता है। Yeah, how can God love me? Do you regularly ask that, dear brothers and sisters? और कैसे परमेश्वर मुझसे प्रेम कर सकता है? भाइयों बहनों, क्या आपने कभी यह प्रश्न अपने आप से किया है? And then when you go to God's word and you see that the Lord says, I will. और जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं और जब आप इस बात को देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, then do you rest in it? तो क्या आप इस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्राम करते हैं? Yeah, there was a man of God who once said that when I look at myself, I don't know how I can be saved. और एक और प्रभु के दास ने कुछ इस रीति से कहा कि जब मैं अपने आप की ओर देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरा कभी उद्धार हो पाता। But then he says, but when I look at God, I don't know how I can be lost.
और लेकिन जब मैं परमेश्वर की ओर देखता हूं तब मैं इस बात को सोचता हूं कि क्या मैं कभी भटक पाता? There is no way we can be lost, brothers and sisters, if our eyes are constantly on the Lord. भाइयों और बहनों, यदि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर निरंतर लगी हुई हैं, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि हम उससे भटक करके दूर चले जाएं। Yeah. Secondly, the I will of resurrection. Verse 40, it says that और दूसरा जो है, मैं ऐसा the same करूंगा। chapter, John chapter 6, verse 40, it says that for everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. और जो दूसरा मैं ऐसा करूंगा वह पुनरुत्थान के विषय में कहता है, जो यूहन्ना 6:40 में है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। Yeah, another constant fear is about death. Most of us fear death. और जो दूसरा भय जो हमारे ऊपर निरंतर बना रहता है वह मृत्यु का भय, और हम में से बहुत सारे लोग हमेशा मृत्यु से भय खाते हैं। Yeah, brothers and sisters, rest in this, brothers and sisters. The Lord will raise you up on the last day. और भाइयों बहनों, आप इस वचन के ऊपर विश्राम करें कि परमेश्वर आपको अंतिम दिन में फिर से जिला उठाएगा। Yeah, there is one more area where our Lord says, when we read Matthew 11:28. और एक और जगह है जहां पे परमेश्वर ऐसा ही कहता है, मत्ती 11:28। The Lord says, I will give you rest. और यहाँ पे भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। There are three things that the Lord calls us to do: to come, to take, and to learn. और यहाँ पे प्रभु तीन चीजों के लिए हमें बुलाता है। पहला, एक आओ, और उसके बाद मेरे अपने ऊपर लो, और फिर विश्राम पाओ। Come to me is what the Lord says. और परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, Take my yoke और मेरे जुए को अपने ऊपर उठाओ, and learn from it. और मुझसे सीखो। Brothers and sisters, that is where we will find rest. और भाइयों बहनों, यही वह स्थान है जहाँ पे हमें विश्राम मिलेगा। Yeah, we get worried with small things. We feel insecure with small things. और जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर के असुरक्षा की भावना में जाते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों से भय खाते हैं। Yeah, I remember that, 2-3 weeks before, I was heading to church, but we were getting late. और 2-3 सप्ताह पहले मुझे स्मरण आता है कि हम चर्च की ओर आ रहे थे और हमें देर हो रही थी। Yeah, and I was getting restless in my heart, but somewhere the Lord was saying that just be restful. और मैं अपने हृदय में अशांत हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु मुझसे कह रहा था कि तू विश्राम कर, शांत रह। In a normal state of mind, I would be pushing my wife. I would really be pressurizing her to reach here before 10:30. और एक साधारण जो हमारे मन की इच्छा है उसके मैं ऐसा कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी को विवश कर रहा था कि हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी 10:30 के पहले कलीसिया में पहुंचना है। We reached late. और हम विलंब से पहुंचे। Yeah, but the Lord allowed me to keep my mouth shut. परंतु परमेश्वर ने मेरी सहायता किया कि मैं अपने मुंह को बंद रख पाया। Yeah, and I sat here and I prayed and I said, Lord, you help me to be shut today. और मैंने बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं शांत रह सकूं, चुप रह सकूं। Yeah, but on the way back, my wife, she said one thing to me. She said, thank you for being patient with me. और वापस जाते समय मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कहा, धन्यवाद हो धीरज से मेरी सहने के लिए। Yeah, I thought that the Lord did something for me and for her as well. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए कुछ कार्य को किया। Yeah, if we are not restful, if we don't listen to what the Lord has to tell us, He can really break things within our heart. He can really break relationships. और यदि हम उन चीजों में जिसमें परमेश्वर चाहता है कि शांत रहें और चिंता ना करें, यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारे जो संबंध हैं वो वाकई में हृदय से खराब हो सकते हैं। Yeah, brothers and sisters, we also read one more time where the Lord says, I will, in Luke chapter 5. और भाइयों बहनों, एक और वचन है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। Brothers and sisters, rest in understanding what Jesus told this leper in Luke chapter 5. लूका 5 अध्याय में जैसे यीशु मसीह ने इस कोढ़ी से कहा, उन वचनों में भी हम विश्राम को पा सकते हैं। Chapter 5:12, he asked the Lord, Lord, if you are willing, you can make me clean. And he stretched out his hand and touched him, saying,
I am willing, be cleansed. और 12 पद से यदि हम पढ़ें तो वो जो कोढ़ी है वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू Yes. शुद्ध हो जा। Yes, the Lord wants to cleanse me. Isn't it a matter of rejoicing that the Lord wants to cleanse me? और क्या यह आनंद का विषय नहीं है कि परमेश्वर मुझे शुद्ध करना चाहता है? We run around tirelessly to become clean, to do things so that our Lord would accept us. But our Lord says, I am willing to clean you. और हम कैसे ही बिना विश्राम के, बिना थके हम प्रयास करते रहते हैं कि हम साफ और स्वच्छ हो जाएं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। Yeah, whenever you read about Rahab the prostitute or Rahab the harlot, you would see that Rahab's name is along with Rahab's name, the word harlot is also mentioned. और जब कभी हम राहाब के विषय में पढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि जहाँ जहाँ राहाब का वर्णन किया गया है वहाँ वहाँ पे उसके नाम के साथ वेश्या शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। Yeah, you read it in Joshua, Hebrew 11:31, James 2:25. Everywhere it says Rahab the harlot. और उसे हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं और याकूब की पत्री में पढ़ते हैं। Yeah, I've often thought, Lord, why do you always keep mentioning Rahab? Yes, she was a harlot. Why do you have to keep saying that Rahab the harlot? और मैंने इस विषय में सोचा है कि प्रभु जी, एक समय की बात थी जब राहाब वेश्या हुआ करती थी, लेकिन क्या बात है कि आपको बार बार वैसे ही करके उसे संबोधन करना पड़ रहा है कि राहाब वेश्या। Should I also keep telling myself, Praveen the man with an evil eye, Praveen the man with an evil tongue? Is that how I should keep addressing myself? तो मैंने परमेश्वर से प्रश्न किया कि क्या ऐसा मुझे भी अपने आप को संबोधन करना है कि प्रवीण वह जो अशुद्ध आंख वाला या अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है? Yeah, but the Lord was telling, no, that is not what I intend. You know, when I say Rahab the harlot, she showed faith. Read the whole verse. She had a past, but she had a future as well in me. और परमेश्वर कह रहा था कि यह नहीं, इस बात पे मैं जोर नहीं देना चाह रहा हूं कि वह एक समय में वह वेश्या थी, लेकिन उसके बाद के वचनों को पढ़ो कि उसके लिए मैंने अब क्या किया है और वह कैसे परिवर्तित हो गई है। Yes, we all were sinners, but brothers and sisters, the Lord has now cleansed us, but let us never forget it. But let us also not live on the first part, just saying that Rahab the harlot. और हाँ, परमेश्वर ने हम में से हरेक को धो करके शुद्ध किया है भाइयों और बहनों, लेकिन हमें उस पहले भाग में ही जीवन नहीं जीना है जहाँ पे वो कहता है कि राहाब वेश्या, परंतु उसके आगे वाले भाग में जाना है। Yeah, brothers and sisters, there are more number of times where the Lord says, 3 more times, where the Lord says, I will. Even in John 14:18, He says, I will not leave you as orphans. और भी तीन बार और है जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, और वह पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में, जहाँ पे वह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Yeah, that is God's promise. Let us rejoice in it that the Lord does not want us to be as orphans. और यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और आइए हम सब इस प्रतिज्ञा में आनंद मनाएं कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वह हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। He said this after giving us the Holy Spirit. और उसने इस बात को हमें तब कहा है जब उसने हमें पहले ही से पवित्र आत्मा दे दिया है। Yeah, the Holy Spirit rests in us. We are not orphans, brothers and sisters. Do not live in solitude. The Lord is with you. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए आप निराशा और नाउम्मीद होकर के जीवन ना जिएं। And then the Lord says in Matthew 10:32 again, और मत्ती 10:32 में परमेश्वर फिर से कहता है that whosoever therefore shall confess me before men, I will confess also before my Father who is in heaven. और जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। Yes, our Lord is going to stand by you. He is going to stand by you if you be faithful. और हाँ, हमारा जो प्रभु है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, और केवल तब ही वह खड़ा रहेगा जब हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे। And the Lord again says, I will to Peter. He says, follow me, Peter, and I will make you a fisher of men. और परमेश्वर फिर से एक बार कहता है मैं ऐसा करूंगा, और वह पतरस को कहता है कि पतरस तू मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे चल, और मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। Brothers and sisters, do we see all these areas where we struggle in our salvation,
in wanting to have rest, in wanting to have cleansing, all these efforts that we keep doing again and again, brothers and sisters. और भाइयों बहनों, और हम ये जो सारे क्षेत्र हैं इसमें हम निरंतर संघर्ष करते हैं. हम चाहते हैं कि हमें शांति मिले, हम चाहते हैं कि हमें शुद्धिकरण मिले. And we rejoice in all the efforts that we put. और हम जो भी प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उस पे हम बहुत आनंद मनाते हैं. Yeah, even in service, we are so happy when we have done something. I want to do something for the Lord. That is all that we want. और जब हम कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम उसमें भी हम बहुत आनंद मनाते हैं कि कम से कम मैंने कुछ तो किया है. Yeah, and if we get victory like Peter, through whom thousands were converted, we are very happy. और यदि हमें पतरस के समान विजय मिले जिसके द्वारा हजारों लोगों ने परिवर्तित हुए, तो हम तो बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो जाएंगे. But if the Lord treats us like Noah, where he waited for 120 years, we are so sad and depressed. परंतु यदि परमेश्वर हमारे साथ नूह के जैसा बर्ताव करता है, जहाँ पे उसे 130 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा, तो हम वहाँ पे बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं और दुखित हो जाते हैं. Because our desire is that everything I do for the Lord should yield fruits and results. Noah didn't have even a single convert. Noah did not have even a single convert for so many years. Convert. He couldn't convert even a single person for so many years. और हमारी लालसा यह रहती कि हम जो भी कार्य परमेश्वर के लिए करें उसका हमें तुरंत प्रतिफल या फल दिखना चाहिए. परंतु हम नूह के जीवन में देखते हैं कि इतने वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी उसने एक भी व्यक्ति को परिवर्तित नहीं कर पाया था. Yeah, but a person who rests in the Lord, even for him serving would be a delight. और ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर विश्राम करता है, उसके लिए सेवा करना भी एक आनंद का विषय रहेगा. Yeah, you know, when we look at a shoemaker or a cobbler, और जब हम एक मोची को देखते हैं, yeah, whatever shoe he gets, he keeps cleaning it. और उसे किसी भी प्रकार का जूता क्यों ना मिले, वो उसे सिलता ही रहता है. Yeah, he keeps cleaning, he keeps mending it, he keeps doing what is required. और वहाँ पे जिस भी चीज की जरूरत होती है, या सुधारने की जरूरत होती है, या उसे सिलने की जरूरत होती है, वह उसे करता है. I wish, most of us would sometimes have that attitude of that, that shoemaker or the cobbler. और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम में से हर एक को वह एक मोची के समान का आचरण होना चाहिए. Yeah, and we just rejoice. Lord, you gave me this, Lord. I will do it faithfully, Lord. और हमें बस केवल आनंद करना चाहिए कि प्रभु जी तूने यह कार्य मुझे दिया, मैं इसे विश्वास योग्यता से और सहर्ष करूंगा. Yeah, may our rejoicing be because we are not serving multiple masters, but we are seeking the Lord. We know what God has done for us. और हमारा जो आनंद मनाना है वह इसलिए नहीं कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, परंतु हमारा आनंद मनाना इस पे रहना चाहिए कि हम उसको देख रहे हैं. Yes, and as our Lord says that He has hidden these things from many. Dear brothers and sisters, let us open our eyes that we can see it. और भाइयों बहनों की परमेश्वर हमारी आंखों को खोले कि हम इन बातों को देख सकें. Yeah, there were two criminals on the cross. और क्रूस के ऊपर दो डाकू थे. Yeah, one of them indicates hope. और उनमें से एक जो डाकू है वह आशा को दिखाता है. Because he was saved. क्योंकि उसने उद्धार को पाया. And the second one was not saved, and he indicates, despair, or he indicates the lack of faith. और दूसरा जो था उसने उद्धार को नहीं पाया और वह निराशा को या विश्वासहीनता को दिखाता है. Yeah, whenever I look at these two thieves, I just think that, Lord, who am I behaving like? Which thief on the cross am I, Lord? और जब कभी मैं इन दोनों डाकुओं को देखता हूं जो यीशु के इर्द गिर्द क्रूस पे चढ़ाए गए थे, तो मैं एक प्रश्न करता हूं कि मैं इनमें से किसके समान जी रहा हूं. Yeah, am I looking at you with hope? कि क्या मैं तुझे आशा से देख रहा हूं? Like I'm very near you, Lord. Both the thieves are near you, but am I looking at you with hope, or is it despair? और ठीक वैसे ही जैसे दोनों डाकू यीशु मसीह के बहुत निकट थे, वैसे मैं भी तेरे निकट हूं, परंतु क्या मैं तेरी ओर आशा से देख रहा हूं या मैं तेरी ओर निराशा से देख रहा हूं? I see a great danger if we don't live in rejoicing and thanksgiving. और मैं एक बहुत ही बड़े खतरे को देख पाता हूं कि जब हम धन्यवाद के संग जीवन नहीं व्यतीत करते हैं. You cannot force anybody to rejoice. और आप किसी को विवश नहीं कर सकते, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो आनंद मनाए. Yeah, if my situations are bad at home, I'm sick, I've lost somebody in the family, I cannot go and tell that person rejoice.
और यदि किसी के घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया है, तो मैं उस व्यक्ति से जाकर के ऐसा नहीं कह सकता हूं कि तू आनंद मना। Yeah, but what the Lord really wants is during that pain to look up to the Lord. और परमेश्वर वास्तविकता में क्या चाहता है कि उस दुख की घड़ी में भी मैं आंख उठा करके उसकी ओर देखूं। Yeah, when we read Romans 1:21, brothers and sisters, we'll read this and close. और हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन। It says that this is about the chapter where the Lord talks about what is going to happen in the last days. और यह एक ऐसा अध्याय है जिसके विषय में परमेश्वर ने अंत के दिनों में क्या होगा उसके बारे में लिखा है। It says, for even though they knew God, और यहाँ पे कहता है 1:21, हाँ 21 वचन में कहता है यद्यपि वे लोग परमेश्वर को जानते थे, they did not honor him as God or give thanks. तो भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य ना ही बड़ाई की और ना ही धन्यवाद दिया। Yeah, many of us know God. हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं। Yeah, it's like a doctor, who sometimes knows a patient. और यह ठीक वैसा ही है एक डॉक्टर के समान जो एक मरीज को जानता है। He knows everything about the physical ailments of the patient, the history of the patient. He knows a lot of things about the family probably. और वह जो डॉक्टर है वह उस मरीज के पुराना जो उसका मेडिकल हिस्ट्री है और उसका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है सबको जानता है। But he would never know that patient personally. He would never know the character of that person, of the patient. लेकिन वह जो डॉक्टर है वह उस मरीज को व्यक्तिगत तौर पे या उसके चरित्र को व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं जान पाएगा। Just like probably his husband or wife would know that patient. और ठीक वैसे उस रीति से कभी नहीं जान पाएगा जिस रीति से उसकी पति या उसके पत्नी उसे जानते हैं। Yeah, many times we are not able to give thanks, brothers and sisters, because we have only known God that way. We have known God because we have heard about God from others. और बहुत बार हम भी ऐसा उसे धन्यवाद इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमने भी परमेश्वर के विषय में जाना है, परमेश्वर को नहीं जाना है। And that is why we are not able to rejoice about all the things that the Lord has written. We are not able to give thanks. और इसीलिए तो हम उन सारी बातों में कभी भी आनंद नहीं मना पाते हैं जिन बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। And then read about the things after that. What does the Lord do when people don't give thanks? और उसके बाद हम आगे उन बातों को पढ़ते हैं कि क्या होगा जब लोग धन्यवाद नहीं देते हैं। Verse 24 it says, God gave them their hearts over to impurity. That is the first thing. और 24 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। God gave them over to degrading passions. Verse 26. और 26 वचन में कहता है परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। Verse 28, God gave them over to a depraved mind. और Verse 28. और 28 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया। Yes, a thankful heart, a heart that rejoices in what God has done. और एक धन्यवादी हृदय और ऐसा हृदय जो इस बात के ऊपर आनंद मनाता है जिसे परमेश्वर ने किया है। A heart that knows God. और एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर को जानता है। That is the heart that can really rejoice wholeheartedly, brothers and sisters. और वही एक ऐसा हृदय है जो वास्तविकता में आनंद मना पाएगा। Yeah, the Lord has done a lot for us. और हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे कामों को किया है। Let us rest in those promises. There are the 7 I wills that the Lord has said. तो आइए हम इन सारी प्रतिज्ञाओं में जो 7 बार जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वहां पर हमें विश्राम करना है। Yeah, let us pray that we will not serve multiple masters. और हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना है कि हम एक से ज्यादा स्वामियों की सेवा ना करें। But we will always live with thankfulness that the Lord will preserve us. और परंतु यह प्रार्थना करना है कि हम हमेशा धन्यवाद के साथ जीवन जी सके और परमेश्वर हमें हमेशा बचाए रख May the सके। Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे।